Good morning everyone. Today I am going to discuss external genitalia or vulva in this human reproduction chapter. तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया और वल्वा में जो पार्ट्स को देखेंगे इट इज मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेस्टिब्यूल, क्लिटोरिस एंड फोरकिन. तो ये जो एंटीरियर पार्ट है स्किन का दैट इज कॉल्ड मॉन्स प्यूबिस. This anterior skin part is called mons pubis. Here is the pubic hair and subcutaneous fat. Now, here is the foldings of tissue and this is called labia majora and it is the thick part and it is homologous to scrotum. Corresponding to this part, here is a thin structure and this is called labia minora and it is homologous to penile urethra. जो हम लोगों ने पढ़ा था कि penile urethra जो है वो पार्ट है जहां से पेनिस और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो है वो ट्रेवर्स करते हैं और एंड दिस थिन पार्ट पोस्टीरियरली it shows extension and this is called forekick. So forekick is the extension of this labia minora while anteriorly there is the extension and this is called clitoris and clitoris is homologous to penis. This part clitoris is covered with this loose skin and it is also the extension of this labia minora and this is called prepuce जो हम लोगों ने reproductive system में फोर स्किन और लूज स्किन पढ़ा था. तो दिस इज कॉल्ड prepuce. Now this opening is called vestibule. This whole opening is called vestibule and this is homologous to membranous urethra. ये membranous urethra, penile urethra, prostatic urethra की बात आई तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था ना कि this is the urinary bladder and this is the urethra. तो अगर क्वेश्चन है कि वो कौन सा पार्ट है यूरेथ्रा का दैट रिसीव्स ओनली यूरिन, योर आंसर विल बी प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा बिकॉज हियर इज द प्रोस्टेट ग्लैंड और जो इजाकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग हो रही थी वो यहाँ यानी कि मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा. तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा कैरीज बोथ सीमेन एंड यूरिन while prostatic urethra it carries only urine. ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा. This question has been asked many times. तो in this vestibular region there is the two opening, two apertures. One is called urethral aperture and the second one is called vaginal orifice. Around this urethral aperture there is openings of many paraurethral gland. There is a gland called paraurethral glands having many openings and this paraurethral gland is homologous to prostate gland in male. This prostate gland is in male and this paraurethral gland is also called lesser vestibular gland. This is also called lesser vestibular gland. Now here is the vaginal orifice and lateral to it is an opening and this is called opening of Bartholin's gland and this Bartholin's gland is homologous to Cowper's gland. Bartholin gland is homologous to Cowper's gland while paraurethral gland is homologous to prostate. ये बहुत अच्छे से याद रखना है. दूसरी बात ये कि क्लिटोरिस जो है यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि टू डॉर्सल कॉर्पर कैवर्नोसा और वन सिंगल जो वेंट्रल कॉर्पोरा स्पॉन्जिएशन इन द मेल पॉपुलेटरी ऑर्गन बट इन द क्लिटोरिस द इरेक्टाइल टिश्यू हियर इज ओनली कॉर्पोरा कैवर्नोसा. देयर इज नो कॉर्पोरा स्पॉन्जिएशन. ये अच्छे से याद रखना है यहाँ पे. और जो पैरामीटर ग्लैंड का जो सिक्रीशन है यह म्यूकस लाइक सिक्रीशन है एंड दिस म्यूकस लाइक सिक्रीशन न्यूट्रलाइज इट्स एसिडिटी सो दैट स्पर्म कैन सर्वाइव. Bartholin glands, its secretion is alkaline secretion and it lubricates the inner surface of the vagina. It lubricates the inner surface of this vagina. तो ये सारी बातें होमोलोगस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से याद रखना
इस तरह से हम लोगों ने जो है यहाँ फिनिश किया एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, और वो एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो है वो है पैरायूट्रल ग्लैंड और बार्थोलिस ग्लैंड। तो आपको याद रखना है इसका लोकेशन कि बार्थोलिन ग्लैंड जो है ऑन द लेटरल साइड ऑफ दिस वेजाइनल ओरिफिस, और पैरायूट्रल ग्लैंड जो है वो यूरेथ्रल एपर्चर। एंटीरियरली देयर इज यूरेथ्रल एपर्चर एंड पोस्टीरियरली देयर इज द वेजाइनल ओरिफिस। यह जो होमोलोगस की बात हो रही है इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में दो मेजर इवेंट जो है, एक तो सेक्स डिटर्मिनेशन और दूसरा सेक्स डिफरेंशिएशन। तो यानी कि जो गोनैड्स हैं, जो गैमेट्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, दे आर मेजोडर्मल इन ओरिजिन, इधर इट इज टेस्टिस और ओवरी। तो टेस्टिस और ओवरी ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज उसमें जो टिश्यू होते हैं वो इस पोटेंशियल के होते हैं कि दे कैन चेंज इनटू एनी स्ट्रक्चर। अगर तो हमने क्या बताया कि जो सेक्स डिफरेंशिएशन होगा, जो सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, वो तो क्रोमोसोमल इवेंट होगा कि एक्स एक्स और एक्स वाई, तो मेल और फीमेल एम्ब्रियो वहां डेवलप होंगे, जाइगोट बनेगा, तभी वहां सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया। तो दिस इज द क्रोमोसोमल इवेंट। और जो सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोमल इवेंट और सेक्स डिफरेंशिएशन जो है वो हार्मोनल इम्पैक्ट की वजह से है। सपोज अगर टेस्टोस्टेरोन है तो वहां पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप करेंगे, और अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं है तो कोई और अदर स्ट्रक्चर दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वहां डेवलप करेंगे। तो टू मेजर इवेंट्स जो है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स डिफरेंशिएशन। तो जाइगोट के बनने के समय सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया, एंड नाउ इट विल डिपेंड कि विच टाइप ऑफ हार्मोन इज देयर। इफ देयर इज अ टेस्टोस्टेरोन, दैट होल स्ट्रक्चर विल चेंज इनटू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. If there is no testosterone, they will change into female reproductive structure. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सटर्नल जेनिटेलिया और वल्वा. आप बहुत अच्छे से इसको याद करेंगे, इसके होमोलोगस ऑर्गन्स को. एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेमरी ग्लैंड्स. गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे माय टॉपिक इज मेमरी ग्लैंड्स और ब्रेस्ट. वन पेयर मेमरी ग्लैंड्स जो है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास मैमेलिया. ये याद रखना है. दूसरी बात ये कि यह कंपाउंड ट्यूबुलोसैक्युलर ग्लैंड है. हम लोगों ने पढ़ा था ना, जब टिश्यू पढ़ा था तो कि कैसे ट्यूबुलर और सैक लाइक स्ट्रक्चर. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड ट्यूबुलोसैक्युलर ग्लैंड एंड इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ दिस स्वेट ग्लैंड. It is non-functional in male, but this modification of sweat gland is functional in female. ये जो मेमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर हमने यहाँ बताया है, ये मेमरी ग्लैंड जिसमें कि ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, फैट होते हैं, और ये फैट्स जो वेरिएबल अमाउंट में होते हैं. फैट्स जो है वेरिएबल अमाउंट, एंड दिस fat decide the size of this mammary gland. Is the glandular tissue, और glandular tissue जो है वो चेंज है किसमें? मेमरी लोब्स में. और मेमरी लोब्स जो है उसका नंबर टोटल है वो 50 to 20 लोब्स. तो 50 to 20 मेमरी लोब्स है, और मेमरी लोब्स जो है वो ग्लैंडुलर टिश्यू, और ग्लैंडुलर टिश्यू मीन्स कि टिश्यू दे आर सेक्रेटरी इन नेचर. जिस मेमरी लोब्स को बनाया है कईक एल्वियोलाइक स्ट्रक्चर, एल्वियोलाई सैक-लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस इज द मेमरी एल्वियोलाई. एल्वियोलाई हम लोगों ने पढ़ा था लंग्स में, एंड ये एल्वियोलाई यहाँ भी हम लोग देखेंगे. तो ऑप्शन में अगर लंग्स और मेमरी ग्लैंड है तो आप दोनों को टिक कर सकते हैं. द सेम टर्म एल्वियोलाई फॉर द मेमरी ग्लैंड एंड फॉर द लंग्स. तो ये जो हम लोगों ने मेमरी लोब्स 50 to 20 नंबर है, ये बने हुए किसके? मेमरी लोब्स के. और इस मेमरी, जैसे मान लो ये मेमरी लोब्स में ये मेमरी एल्वियोलाई है, तो मेमरी एल्वियोलाई में जो ये सेक्रेटरी सेल्स है, दे सीक्रेट्स मिल्क, एंड दिस मिल्क इज स्टोर्ड हियर. दिस मिल्क इज स्टोर्ड हियर. और इस तरह से हर एल्वियोलाई जो सीक्रेशन कर रहा है इस मिल्क का, वो मैनी, तो मैनी एल्वियोलाई जो है मैनी मेमरी ट्यूब्यूल से अपने सीक्रेशन को वो देता है किसको? मेमरी डक्ट को. और मेमरी डक्ट जो है यह वाइडन हो रहा है एंटीरियरली आके, एंड दिस इज कॉल्ड मेमरी एम्पुला.
और मेमोरी एम्पुला जो है वो उस मिल्क को ट्रांसफर कर रहा है लैक्टिफेरस डक्ट को, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, एंड दिस लैक्टिफेरस डक्ट ओपन्स इन दिस स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड निपल। तो ये और साथ ही साथ ये जो फाइब्रस टिश्यू है, दिस फाइब्रस टिश्यू हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ दिस मेमोरी ग्लैंड विद द थोरेसिक वॉल। और साथ ही साथ इस मिल्क में जो हम लोग कंपोजिशन देखेंगे कि जो लैक्टोज शुगर है जिसके कारण मिल्क मीठा है, केसिन प्रोटीन है, फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, कैल्शियम होते हैं, लेकिन मिल्क जो है वो पुअर सोर्स है किसका? आयरन एंड विटामिन सी का। तो पुअर इन आयरन एंड विटामिन सी, ये अच्छे से याद रखेंगे। मिल्क सिंथेसिस जो है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन, और प्रोलैक्टिन हार्मोन इज द हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। साथ ही साथ मिल्क लेट डाउन जो है, मिल्क इजेक्शन जो हार्मोन है, इट इज ऑक्सीटोसिन एंड ये इज टर्म कोलोस्ट्रम। तो आफ्टर पार्चुरेशन जो मेमोरी ग्लैंड से फर्स्ट मिल्क जो उनके बेबी के लिए आता है दैट इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम, और इस कोलोस्ट्रम जो है वो लोडेड होता है इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज ए से, तो IgA। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD। लेकिन यह जो कोलोस्ट्रम है जो कि लोडेड है इम्यूनोग्लोबुलिन ए से, और इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है ये सेक्रेटरी एंटीबॉडी कहलाते हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना होगा कि सेक्रेटरी एंटीबॉडी यानी कहीं भी सिक्रीशन हो, जैसे अगर कह दिया जाए टीयर्स, इंटेस्टिनल जूस, गैस्ट्रिक जूस, अगर वहां एंटीबॉडीज है तो वो कौन सा एंटीबॉडीज होगा? ये IgA। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेक्रेटरी एंटीबॉडी बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द वेरियस सिक्रीशन, सेक्रेटरी एंटीबॉडी। साथ ही साथ ये 6 मंथ के लिए, कम से कम 6 मंथ के लिए या उस बेबी को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी, एंड इम्यूनिटी मीन्स रेसिस्टेंसी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उस बेबी को IgA जो है वो पैसिव इम्यूनिटी देता है। पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होते हैं जहां रेडीमेड एंटीबॉडीज वो मिलता है, लेकिन अगर ये एंटीबॉडीज जो है इंडिविजुअल्स का बॉडी बना है तो दिस इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी, बट दिस इज IgA इज प्रोवाइडिंग दिस पैसिव इम्यूनिटी। तो ये हम लोग ने देखा कि मेमोरी ग्लैंड, और मेमोरी ग्लैंड जो है उसमें 15 to 20 जो है वो ग्लैंड मेमोरी लोब्स हैं, जो मेमोरी लोब्स ग्लैंडुलर टिश्यू है, और मेमोरी लोब्स को बनाया है मेमोरी एल्वियोलाई ने। ये एल्वियोलाई जो है मिल्क का सिक्रीशन करते हैं, और ये उस स्पेसेस में ये मिल्क का डिपोजिशन होता है, और वेरियस जो है मेमोरी ट्यूब्यूल्स से ये जो मिल्क है वो आता है कहाँ? मेमोरी डक्ट में, और मेमोरी डक्ट इस सिक्रीशन को मेमोरी एम्पुला लैक्टिफेरस डक्ट और लैक्टिफेरस डक्ट एट द सरफेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो और साथ साथ ये देखिए मैनी एल्वियोलाई, तो कई की जो एल्वियोलाई है इसने मिल्क का सिक्रीशन किया बिकॉज दे आर हैविंग द ग्लैंडुलर टिश्यू एंड दैट मिल्क इज इन दिस ल्यूमेन, दिस पार्ट इज कॉल्ड ल्यूमेन। तो इस मैनी जो एल्वियोलाई है, इस सारे एल्वियोलाई के तो डक्ट होंगे ना, ट्यूब्यूल्स, सारे जो भी एल्वियोलाई है ये किसमें खुलेंगे? ट्यूब्यूल्स में। तो मैनी एल्वियोलाई एंड दे आर पोरिंग इट्स सिक्रीशन टू द मैनी ट्यूब्यूल्स, और मैनी ट्यूब्यूल्स जो है वो ओपन हो जाते हैं किसमें? मेमोरी डक्ट में। यानी कि आपको याद रखना है मैनी एल्वियोलाई सो मैनी मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मैनी एल्वियोलाई सो मैनी मेमोरी ट्यूब्यूल्स, और मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो ज्वाइन करते हैं किसको? वन मेमोरी डक्ट को। ये बात अच्छी समझ में आई ना कि दिस इज द एल्वियोलाई, और हर एल्वियोलाई का क्या होगा बेटा? मेमोरी ट्यूब्यूल्स होंगे हर एल्वियोलाई। जैसे मान लो मैंने एक और एल्वियोलाई यहाँ बनाया और इसमें ये मिल्क का सिक्रीशन, तो ये जो अपना सिक्रीशन देगा वो किसको देगा? मेमोरी ट्यूब्यूल्स को। तो इस तरह से ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स और सब मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो है वो फ्यूज करके और वो ओपन हो जाते हैं सिंगल मेमोरी डक्ट में।
तो many alveoli, many mammary tubules, one mammary duct, one mammary ampulla, one lactiferous duct which opens on the surface of nipple. और इस निपल के अराउंड जो डार्क एरिया है that is called areola. तो ये सब आपको याद रखना है. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस mammary glands. Thank you so much.